short point fielder has been sent in the deep point position. So that is the change which has been made before the ball been delivered. And there is a fielder in the deep square leg as well. Are you ready? Let's play. It will be the call. Shuffled across, the ball is up in the air and a catching opportunity at the very first delivery of Yasin Singh. It has been nicely been taken. And what a breakthrough here for Yasin Singh. The very first ball is a wicket of Vicky. So what a breakthrough here from Yasin Singh Gungutti, the very first ball of wicket here of Vicky. And look at how disciplined the team of Kakoda boys is. They're sitting as if they're sitting for the photo session. Very close in and with a lot of discipline. No fielders or no players are just roaming around. So that is what is good to see on the YouTube as well. So Sanjit joins in. Left hand, right hand combination will be handy here for the batsmen. If they try to form a partnership and play, it will be a good advantage. As always, the left hand, right hand combination works in favor of the batsman. However, bubbling with the confidence, Yasin Singh Gungutti once again ready to bowl to the left hander, Sanjit. Reverse this time, he becomes the right hander and wants to just play a little bit of bat on there, but finds the fielder in the point region. Basavaraj Madar, after that injury, has come back good. Wonderful player from Vasco. Great talent. He is with love, known as Basu. So what a line and length this is from Yasin Singh Gungutti, trying to just maintain the good areas and not allowing the batsmen to play freely with opening their shoulders and arms. Right in the block hole, little bit of gentle drive there, and waiting is the call coming from the captain because they say from the non-strikers, and very quick fielding. Nehal, lightning quick. Ori was once again right in the block hole, didn't allow the batsman to bowl that shot of length. This is outstanding, absolutely beautiful bowling from Yasin Singh Gungutti. In spite of two efforts from Sanjit for the reverse, he could not time the ball properly. Four balls bowled, score is just one with one wicket of Vicky as well. So what a tight line over this is turning out to be under the captainship of Lalla Yadav. Once again bringing that change in the fielding because this against the striking position as the captain has the huge responsibility on his shoulder. He has to play and captain's knock here. He's a leader who leads from the front and he leads by example. And what a quality batsman that he is because they say. Well, what will be his approach towards the good bowling attack of Yasin Singh Gungutti as he gains the striking position? A slow one, well bowled once again, deceived the plans of Vikas Desai. What a quality bowling this has been delivered from Yasin Singh Gungutti. Absolutely fantastic. The change of pace was so brilliant. In spite of keeping that perfect line and length, the variation in the length is also absolutely fabulous. One of its kind and one of the good overs that what I'm seeing in this tournament. It has to be Yasin Singh Gungutti's over. The ball is up and catching opportunity for Lalla Yadav. Because this time wanted to play but missed it completely. The second wicket in the very first over. And what a brilliant delivery this is. Completion of 1 over. Score is just 1 for 2. Over.
Sanjay Naik walks in at number 4, two down batsman after the dismissal of the Vikas Desai. Hemant Shedgaonkar has been brought into the bowling attack, and what a fantastic over that was. Just one run given and picked up two. Very first delivery was a wicket of Vicky, very last delivery was a wicket of Vikas Desai. So that was a summary of the very first over. What a start here from Most Wanted. Hemant Shedgaonkar versus Sanjay Naik, and Sanjay Naik now has the responsibility. Can he rise up to the occasion and play a big inning, which the team of Kakoda boys needs the most? A good looking drive straight to Yasin Singh and Guti in the long on region. That will be a no ball, and it will be a free hit advantage here for the batsman Sanjeet. No ball, the very first ball, and a drive to the long on and a free hit. Look at the fingers spinning above the head of official umpire Aslam Sheikh. So can Sanjeet make the most of this free hit, which is an opportunity? Look at the fielding is nicely been sprayed. This is good captainship from Lalla Yadav. He's got the tons of experience and been also captain for Rohit Cricketers, one among the best cricketing team of Goa, who's not only shining in Goa but also in Maharashtra and Karnataka in the name of his beloved late son Rohit. Free hit. Oh, shuffled across and good hit. The ball is up and that will be stopped. Look at the awareness from Basavaraj Madar. Good catch and quick throw. So the free hit was just one run. Wide signal. This over is turning out to be slightly expensive as well as compared to the first over. Of course, the first over, no comparison. Just one run, two wickets from Yasin Singh and Gutti. What a way to start for Most Wanted. Oh, this time once again left hand with a surprise look towards the official umpire. Look at, still is standing still. Sanjay Naik is no doubt is a good batsman. Kakoda boys need him to fire some good runs, some big shots. Oh, lovely drive, gets hold of this one, but finds the field in the mid-wicket region. A little fumble there. Oh, diving effort from Yasin Singh and Gutti. Yasin Singh and Gutti is stealing the show in this match. The over was given to him, one run, two wickets, and now diving effort, absolutely IPL standard. As since yesterday, the IPL have started, and what a win! Very close for Royal Challengers Bengaluru team outplaying Mumbai Indians in the very first inaugural match of IPL. Oh, nicely played! Look at that beautiful footwork and the eyes hand coordination, absolutely wonderful from Sanjay Naik. He is a batsman who looks in a terrific form of batting, which is a good sign for Kakado boys, and a good combination is also quite well. Left hand, right hand combination. As you can see, every rotation there will be change in the fielding. A little bit of work to the captain Lalla Yadav. And Yasin been kept in the long off region. Mid wicket, deep square leg, long off. All around the edge of the boundary. Oh, lovely shot. Didn't quite get hold of that when the ball is up and catching opportunity here for Basavaraj Madar. He takes it. Another wicket goes on as three wickets have gone down of Kakoda boys. This time Sanjeet wanted to play out of the park but played straight to the mid-wicket fielder.
Suraj Parab has walked in after the dismissal of Sanjeet. He wanted to play but could not accelerate big. The acceleration was right, the elevation was good, but not the distance. As Hemant Shedgaonkar picks up the third wicket after two picked up by Yasin Singangutti in the very first over of the second match of day 4. Oh, lovely drive, good sound as well, very quick fielding. Look at the beauty. Lalla Yadav is setting a good example of how to field. An example, Ashokji, is the best language to convey the message to the fellow fielders, not by shouting, screaming, making them embrace on the field. You set a good example, and that is the message good enough to give to your fellow fielders. Completion of 2 overs. It's 8 for 3. थैंक यू डीजे। तो 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी विकेट गिरने वाली संजीत, जिन्हें आउट किया हेमंत शेटगांवकर ने। फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में लाए गए हैं सबसे सफल गेंदबाज यासिन सिंगनगुट्टी। मोस्ट वांटेड में 2 भाई सिंगनगुट्टी जो कि खेल रहे हैं, आसिफ सिंगनगुट्टी और यासिन सिंगनगुट्टी। निहायत ही टैलेंटेड, काफी तजुर्बा उनको। तो अशोक जी, आज निश्चित तौर पर हम मिस कर रहे हैं हमारे ओहो उड़ा दिया, यानी कि ये कृष्णा देव जी को। तो बहरहाल जब कभी आप कमेंट्री बॉक्स में होते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि सीनियर कमेंटेटर के सामने बिल्कुल एक बहुत सीखने के लिए काफ़ी कुछ रहता है। तो फिलहाल तारीफ करनी होगी स्टार बॉयज़ ऑफ कुरचरम की, जिस प्रकार से उन्होंने एक सुंदर टूर्नामेंट का आगाज़ किया है। और ये 6ठा एडिशन है ऑल गोवा म्यूनसिपैलिटी पंचायत लेवल का, और काफ़ी अच्छी प्लानिंग है और काफ़ी अच्छी टीम जो कि पर्दों के पीछे काम करते हुए। और एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि अगर सपनों को पूरा करना है तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार की एक यहाँ लड़ाई जो कि टीम इस टूर्नामेंट के पीछे दिन रात एक कर चुकी है। तो मेरा सलाम है मंसूर भाई को, असलम शेख और उनकी टीम को, जिस प्रकार से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। बिल्कुल फुल मार्क्स उनके लिए। तो लल्ला यादव स्वयं कप्तान आए हैं तीसरे ओवर में। स्कोर 8, 3 विकेट के नुकसान पर, और स्ट्राइक पर हैं सूरज परब। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया गया था, मगर पूरी तरह से चूके। सुंदर गेंद के साथ शुरुआत करते हुए लल्ला यादव, यानी कि गेंदबाजों ने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की है। कोई गलती नहीं की गेंदबाजों ने, ना फुल टच दिया, ना शॉट ऑफ लेंथ दिया, ना हाफ वॉली। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद के कारण वाइड का इशारा जो कि आता हुआ थोड़ा सा आश्चर्यचकित जरूर हुए लल्ला, मगर अंपायर का डिसीजन को माना। फिर से एक बार सफल होकर खेलना चाहते हैं। इस बार फाइन एज के कारण लल्ला यादव को यह विकेट मिलता हुआ। सूरज परब को किया चलता, फाइन एज हुई और विकेट कीपर तौसीफ जमादार ने एक बेहतरीन कैच लिए। इस प्रकार से काकोड़ा बॉयज के 4 विकेट अब तक खो चुके हैं टीम, और स्कोर 9 रनों पर रुका हुआ। थैंक यू डीजे। अशोक जी, कमेंट्री भी कितना बेहतरीन प्रोफेशन है। पिछले 10 सालों से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ गोवा में, और आप लगभग 35 सालों से। तो इतवार के रोज़ शाम में मुझे वॉलीबॉल की कमेंट्री के लिए भी न्योता दिया गया है, और उसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि बैडमिंटन, फुटबॉल में भी मैंने कमेंट्री की है। तो एक डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ हम जुड़े हैं।
तो क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है, कभी वॉलीबॉल के लिए आपको बुलाया गया है? हाँ सर, बिल्कुल वॉलीबॉल के लिए किया है, लेकिन पसंदीदा क्रिकेट ही है। तो इसी बीच नए बल्लेबाज जो कि मैदान पर उतर रहे हैं सूरज परब के आउट होने के बाद, उत्तम। तो उत्तम को बिल्कुल उत्तम बल्लेबाजी करनी होगी। तो फिलहाल संजय नाइक के बल्ले से निकलता हुआ ये सुंदर शॉट बिल्कुल एसएसजी बिल्डिंग के छत पर दे मारा है 6 रनों के लिए। और इस प्रकार से बल्लेबाजी होती रहनी चाहिए। अब खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये रॉयल T10 में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी संजय नाइक ने, और आज भी वो मैच मुझे याद है, हालांकि 2 वर्ष हो चुके हैं उस मैच को। गेंद हवा में, इस बार कैच का मौका, वहां पर फील्डर गेंद के नीचे आता हुआ और एक कैच हाथों से छूटता हुआ। ये काफी मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार की कैच छूटते हुए मोस्ट वांटेड टीम में। अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है, अच्छी फील्डिंग हुई है और अच्छी कैचेस भी ली गई है। देखिए हाँ थोड़ा काफी निराश होते हुए लल्ला, क्योंकि हर एक कैच को पकड़ना मैच के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है और बिल्कुल। एक कैच छोड़ना भी काफी महंगा साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, पिछला मैच देखा, कैच छूटा नवनाथ का, कितना महंगा साबित हुआ। और इसमें नाराजगी की बात यह थी कि संजय नाइक का कैच जो कि छूटा है, उन्होंने इससे पहले एक लंबा छक्का लगाया था डीप स्क्वेयर की दिशा में। फिलहाल उत्तम जो कि स्ट्राइक पर और लल्ला यादव गेंदबाजी के क्रम में। फिर से एक बार गति परिवर्तन, सुंदर शॉट के साथ गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। नजाकत भरा शॉट, टाइमिंग उतनी ही खूबसूरत। तो 15 रन इस ओवर में आए लल्ला यादव के। हालांकि एक विकेट भी जो मिला सूरज परब का, मगर 2 लंबे छक्के भी जो कि देखने को मिले। तो पहले ओवर में केवल 1 रन आया था, 2 विकेटें गिरी थी। दूसरी ओवर में 8 रन आया, यानी कि 7 रन दिए थे हेमंत शेरगांवकर ने, और लल्ला यादव ने 15 रन दिए। हालांकि एक विकेट जरूर लिया है दोनों गेंदबाजों ने। तो देखना होगा कि चौथी ओवर जो कि अब जारी है, यासीन को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में, जो सबसे सफल गेंदबाज अब तक के रहे हैं। केवल 1 रन उन्होंने दिया था पहली ओवर में, यानी कि पावर प्ले में, और 2 विकेटें ली थी। और एक तो लो फील्डर से फिर से एक बार कलाइयों का भरपूर उपयोग किया, मगर इस बार फील्डर को पाया डीप स्क्वेयर की दिशा में। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते, केवल 1 रन पे बल्लेबाजों को संतुष्ट किया। इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 24 रनों पर। चौथी ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अब तक 4 विकेटें गिरी हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए काकोड़ा बॉयज की। तो अब संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और मौके की तलाश में शॉट ऑफ लेंथ, हाफ वॉली या फिर जूसी फुल टॉस, तो बिल्कुल कड़ा प्रहार करेंगे और लंबे शॉट्स के लिए खेलेंगे निश्चित तौर पर। सीधे ब्लॉक होल में किए, यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट का अंदाज देखने को मिला। बिल्कुल अगर यॉर्कर लाइन गेंद है या फिर सीधे ब्लॉक होल में, तो उसका एक ही जवाब है, हेलीकॉप्टर शॉट। कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे सर अमेय नाइक और सर डेंजिल। सर अमेय नाइक और डेंजिल सर, आपसे गुजारिश है, आइए मंच पर विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत स्टार बॉयज ऑफ कुरचुरम जिनके ओर से आपका। फिर से एक बार हेलीकॉप्टर का शॉट देखने को मिला। लगता है MS धोनी के काफी बड़े फैन हैं उत्तम, और उत्तम तरह से बल्लेबाजी करते हुए। और काफी सारे दर्शक भी विराजमान होकर बैठे हैं अपनी सीटों पर, और इस खूबसूरत मैच का जो कि मजा उठा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। उन सभी का तहे दिल से
स्वागत और सभी को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड आफ्टरनून। वो फिर से एक बार देखिए सुंदर शॉट, मगर वहाँ पर दो फील्डर मौजूद हैं। एक अच्छा टीम वर्क वहाँ पर देखने को मिला और जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते केवल 2 रन पे संतुष्ट किया। जिस प्रकार से स्ट्रोक खेला था बिल्कुल काबिल तारीफ। ऑफ की गेंद थी और बिल्कुल बल्ले का मुंह मोड़कर स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया संजय आइए नायक। आइए सर, एक बार आपका स्वागत है सर अमेय नाइक। आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल अमय नाइक जी का स्वागत और डेंजिल जी का भी स्वागत मंच पर। खेलना चाह रहे थे इस बार पूरी तरह से चूके पैरों से गेंद निकली तो लेग बाय का शायद इशारा होगा और बिल्कुल हुआ भी लेग बाय। एक रन जो कि स्कोर खाते में जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इस एक लेग बाय 1 रन के साथ 30 रनों पर। ये चौथी ओवर जो कि प्रगति पर 4 विकेट गिरे हैं, स्कोर हुआ है 30। इसके बाद आने अभी 2 ओवर बाकी हैं, तो जब तक संजय नाइक और उत्तम रहेंगे तो बिल्कुल एक बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलेगी काकोड़ा बॉयज की ओर से। अब स्थिति संभलती हुई और अच्छे शॉट्स भी लगते हुए संजय नाइक की ओर से। सर डेंजिल जिनका स्वागत हो रहा है, हमारे गणेश गुलाब पुष्प देकर सर डेंजिल का स्वागत कर रहे हैं। आइए गणेश। फिर से एक बार हेलीकॉप्टर, ये तीसरा हेलीकॉप्टर जो कि उड़ा है और गेंद को भेज दिया है मिड विकेट की दिशा में केवल 1 रन के लिए। सुंदर फील्डिंग होते हुए और उतना ही बढ़िया तो तौसीफ जमादार हैं फील्डर। तो इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 31 रनों पर और ओवरें समाप्त हुई 4। इस बार असलम शेख साहब ने कहा ओवर। अशोक जी, मैंने 1 ओवर हिंदी में कमेंट्री कर ली है और आपसे गुजारिश है कि 1 ओवर अंग्रेजी में आप कर लें। बिगिनिंग ऑफ द 5th ओवर। और हम फिर से एक बार कॉल कर रहे हैं। आइए सर, सावर डैम पंच सम्माननीय सर अमेय नाइक, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। आइए मंच पर प्लीज आइए, विराजमान हो जाइए अमेय नाइक। So Basavaraj Madar, the very first delivery, the ball is up in there, and the batsman will be safe because he has played in no man's zone. They're looking for 2. They will not get it, however. And what a match this is turning out to be, one of the most exciting match. It is going down the wire. Both are talented teams. One Kakoda boys under the captainship of immensely talented Vikas Desai. Of course, he could not bat much today because he wanted to play but played straight to the fielder. With the miscued shot, he got out. Otherwise, the score would have been more than what it is on the scorecard. Oh, lawful toss. Good hit. Didn't quite time, but still will get a single. They will be looking. And they're pushing hard for 2 here. And what a wonderful running between the wickets. Yasin Singh and Gutti wanted to throw Basavaraj Mada's end. It means. And Basavaraj Mada is arguing that he should have thrown in the wicket-keeper's end. However, the opportunity was in both the ends. But Basavaraj Mada should have been more active. So he's just trying to accelerate and hit hard on the ball. Oh, lovely shot once again. Going hard, definitely. Excellent piece of work there in the deep square leg region. Just 1 run conceded with that delivery. Good comeback here from Basavaraj Madar. After that injury, he's just recovering. And still you can see the bandage taping there on the thumb of the right hand. They say wounded tigers are more dangerous. Oh, wanted to play this time, completely miscued it, and a little bit of fumble there from Lalla Yadav. What a cheeky single this is. Stealing under the noses of the field of most wanted. However, let me remind the spectators, this is the wonderful tournament from Star Boys of Kurchorim, and this is the match number 2 of day 4. Tomorrow is Sunday. Tomorrow will be the fun day, as 2 semi-finals and 1 big finals to be played. And tomorrow, the beautiful tournament will come to an end after the 5 days of action on this beautiful ground.
Oh, this time wanted to play, missed it completely. The bell is down. Sanjay Naik is out. The fifth wicket goes down of Kakoda boys. तो मान्यवर कक्ष में आगमन होता हुआ सर अमेय नाइक सावर डैम पंच जिनका आगमन होता हुआ और उनका स्वागत हो रहा है। गुलाब पुष्प देकर स्वागत कर रहे हैं हमारे अभिजीत, स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सर अमेय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में नदीम अहमद के साथ Warm welcome to Amay Naik sir. He is finally on the stage and he's been welcomed by giving a beautiful rose. Oh, lovely shot. This time he gets hold of that one and the ball will sail many, many, many miles up in the air for the huge one. It's a sixer. तो इस बीच सुंदर कैच, पहली गेंद पर एक विकेट यहाँ पर आसिफ को। तो पहली गेंद में ये विकेट लेते हुए आसिफ, जो कि ये छठी ओवर जारी। तो नए बल्लेबाज मैदान पर उतरे हैं सनील सावंत देसाई, जो कि बेहतरीन गेंदबाज है। स्वप्नेश खेड़ेकर के बल्ले से ये निकलता हुआ मिड विकेट के डीप स्क्वेयर की दिशा में एक रन के लिए स्कोर इस एक रन के साथ जा पहुंचा है 43 रनों पर। यानी कि निश्चित तौर पर रनों को सीमित करने का बिल्कुल बढ़िया प्रयास जो कि होता हुआ गेंदबाज की ओर से। लाइन और लेंथ फिर से एक बार खूबसूरत। हालांकि यह सभी ओवर में सबसे अगर महंगा ओवर जो हुआ है वो लल्ला यादव का 15 रन उस ओवर में आए। उसके बाद सभी गेंदबाजों ने काफी सुंदर गेंदबाजी की है। फिर से एक बार सीधे ब्लॉक होल में, मगर सुंदर ड्राइव के साथ गेंद को भेजा लॉन्ग ऑफ की दिशा में और 2 रन का प्रयास यहां पर करने की कोशिश सनील सावंत द्वारा, मगर नकारा। कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत कर रहे हैं किशन सावंत और सर यश प्रभु देसाई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आइए सर हमारे मंच पर विराजमान हो जाइए। खेलने का प्रयास और क्लीन बोल्ड होकर चलते हुए स्वप्नेश। तो इस प्रकार से छठा विकेट जो कि गिरा काकोड़ा बॉयज को 44 स्कोर पर।
तो अब तक कुल मिलाकर 6 विकेटें गिरी हैं और नए बल्लेबाज जो कि मैदान में उतर रहे हैं, चंद्रेश देसाई जो कि अच्छे गेंदबाज हैं। दोनों ही गेंदबाज अब क्रीज पर 44 6 विकेट के नुकसान पर, और आखिरी ओवर जो कि जारी। सुंदर गेंदबाजी होती हुई आसिफ की ओर से। सफल होकर खेल दिया इस बार, पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, और क्या ही टाइमिंग, क्या ताकत, क्या नजाकत। बिल्कुल 6 रन के लिए भेज दिया है चंद्रेश देसाई ने। 50 रन पूरे। थैंक यू केन इट इज। आइए सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सर किशन सावंत और यश प्रभु देसाई, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। 2 गेंदें शेष और उसको जब पहुंचाए 50। चंद्र जैसा फिर से एक बार काफी जोश में अब नजर आते हुए सफल होकर फिर से एक बार उसी शॉट खेलने का प्रयास किया। इस बार बेहतरीन गेंदबाजी के साथ वापसी की अच्छी आसिफ ने। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते, यहाँ पर दौड़ लगाई है, भाग मिल्खा भाग। तीसरे रन के लिए दौड़े हैं, मगर रनआउट का मौका जरूर रहेगा। इस प्रकार से 2 रन बनाए, यानी कि 52 रन और 53 रन जो कि लक्ष्य रहेगा जीतने के लिए मोस्ट वांटेड के सामने। 6 ओवरों में यानी कि 36 गेंदें 53 रन। तो देखना होगा कि क्या मोस्ट वांटेड अपने अच्छी बल्लेबाजी के साथ स्कोर लक्ष्य तक पहुंचेगी, 53 रन बनाएगी, या फिर गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग की बदौलत काकोड़ा बॉयज रोकने में कामयाब रहेगी। इसी बीच अंपायर ने कहा इट्स टाइम एंड ओवर। अगली कमेंट्री अपडेट्स आप सुनिए अमची माती तुमची मानसा अशोक जी नाइक। थैंक यू सर, बहुत बहुत नदीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बेहतरीन कमेंट्री के साथ मीठी आवाज़। और यहाँ पर आगमन हो रहा है सर किशन सावंत और सर यश प्रभु देसाई, स्टार बॉयज ऑफ कुरुचरम, जिनकी ओर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आइए सर, मंच पर विराजमान हो जाइए। और थैंक यू नदीम सर, एक बार फिर से जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में आप सभी के साथ। मैं अशोक नाइक और नदीम अहमद, दोनों अंपायर हमारे, असलम शेख और उनके साथ सदगिरी नाइक और सर संजय नाइक। हमारे रीड की हड्डी स्कोरिंग की जानकारी बाबूश, और बाबूश के साथ अब मात्र जुड़ चुका है हमारे साथ मफरिद, और हमारे कैमरामैन जो अब संजू, और नेहाल जो कि और एक हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। तो यहाँ पर मंच पर सभी मेहमानों का, सभी अतिथियों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और जो दर्शक उपस्थित है इस मैदान के आसपास, उनका भी एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की मैच में मोस्ट वांटेड क्रिकेट टीम ने शानदार शुरुआत की। पहले ओवर में यासिन सिंगनगुट्टी, और वहीं से लेकर उभर कर नहीं निकली। जो उम्मीद थी एक इस मैच में बड़े टोटल की, वो नहीं बनाया काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम ने। फिलहाल देखना होगा, टारगेट थोड़ा सा छोटा जरूर है, लेकिन कभी कभी छोटे टारगेट के मैच में बहुत ही बेहतरीन मुकाबले देखे जाते हैं। 53 रनों का टारगेट है मैच को जीतने का। और किस तरह से देखना होगा, लल्ला यादव उनके उन पूरे साथी, काफ़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है लल्ला यादव के साइड में भी, सामने गेंदबाज भी है। और किस तरह से मुकाबला फिलहाल ये शुरू होता है मैदान पर। और मोस्ट वांटेड क्रिकेट टीम, आइए आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। मोस्ट वांटेड लल्ला यादव कैप्टन, आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें।
या ठिकाणी विनंती असेल आमचे सन्माननीय सर साहिल सावंत, साहिल पालियेकर, माफ करा साहिल पालियेकर, आपलं सहर्ष स्वागत. आपल्याला विनंती असेल या ठिकाणी आपण आमच्या मान्यवर कक्षात यायचं आहे. साहिल पालियेकर, पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मोस्ट वांटेड लल्ला यादव सर, आइए प्लीज, आपका 12th मैन प्लीज, प्लीज आपका 12th मैन भेजिए कमेंट्री बॉक्स में. दोस्तों हर मैच के लिए आपके लिए शानदार ट्रॉफी है. आपके घर में अलमारी में यादें जुड़ती जाएंगे इस ट्रॉफी के साथ. स्टार बॉयज क्रिकेट टीम की मैन ऑफ द मैच के लिए ढेर सारी इनामें हैं इस टूर्नामेंट के साथ. कल के दिन में 2 सेमीफाइनल के मैच हो गए, आखिरी मुकाबला होगा, इस मेगा फाइनल का मुकाबला होगा इस मैदान पर. पिछले 3 दिन से कृष्णा देव जी हमारे साथ जुड़ चुके थे. एक बिल्कुल बेहतरीन आवाज़, काफ़ी मशहूर कमेंटेटर, और उन्हीं के साथ मैं अशोक नाइक आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से. और जीसीए के जिन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी एक मैच जो कि वो भी किया था कमेंट्री कक्ष में, वो हमारे नदीम अहमद, वो भी हमारे साथ. और एक आपकी जो कि आपकी जानी पहचानी आवाज़ हरीश काकोडकर सर, एक बेहतरीन कमेंटेटर जो इसी इलाके के, वो जो कि सांगे के मैदान पर जुड़ चुके हैं. और फिलहाल तुषार नाइक, हमारे नीलेश पारसेकर जो कोरगांव से बेहतरीन कमेंटेटर, वो भी यूट्यूब पर इस मैच को देख रहे. परवरिश से हमारे दोस्त दिनेश नाइक, रिद्धि वॉरियर्स के सर्वे सर्वा जो दिनेश नाइक, वो भी मैच को देख रहे, बहुत तारीफ कर रहे हैं. बहुत अच्छा प्रसारण है, अच्छी टूर्नामेंट है. आप सभी का स्वागत. और मैच मैदान पर शुरू होता हुआ ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है मैदान पर, लल्ला यादव, और लल्ला यादव के साथ सैयद बद्दी है, क्या नाम, सैयद बद्दी नहीं है ना, बॉलिंग मार पर रुद्रेश पहले ओवर की पहली गेंद लेकर. टारगेट 53 रन का मैच को जीतने का. तौसीफ स्ट्राइक पर पहली गेंद, अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला. फ्रंट फुट पर हल्का डिले हाथों से ड्राइव किया गेंद को, पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते. सिंगल के साथ रनों के खाते की शुरुआत की मोस्ट वांटेड क्रिकेट टीम ने. 53 का टारगेट है मैच को जीतने का, लेकिन सामने से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, एक अच्छी गेंदबाजी, उन्हीं के साथ फील्डिंग करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर ये छोटा टारगेट को आपको सामने वाले टीम को रोकना है तो ये कमाल करनी पड़ेगी मैदान पर. फिलहाल सिंगल के साथ रनों का सिलसिला मैदान पर जारी. राम उर्फ लल्ला यादव स्ट्राइक पर. एक बैठक शॉट, फेवरेट शॉट लल्ला यादव का, बिल्कुल कृष्णा सातपुते के अंदाज में. ये उनका स्टाइल है, ये उनका शॉट है. और फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड करते लल्ला यादव अपने खाते की 2 रन के साथ से शुरुआत करते हुए स्कोर आगे बढ़ाते हुए 3 पर. अर्जुन भोसले, एक नाम और जरूर लेना पड़ेगा, कर्नाटक का, बिल्कुल एक कर्नाटक का हीरा, वो भी इस शॉट के लिए जाना जाता है. और लल्ला यादव वो भी, प्रजेश उर्फ विक्की नाइक, ये बिल्कुल अच्छा खेलते ये शॉट. पुनाजी कलंगुटकर, मनोज नार्वेकर, क्या एक से बढ़कर दिग्गज खिलाड़ी है गोवा टेनिस के. और सामने एक बार फिर से अगली गेंद लेकर कट किया, इस बार ऑफ साइड पर. बहुत बेहतरीन शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ. 4 रन के लिए डीजे केनी. पावर प्ले में बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी, 1-2 विकेट लेनी पड़ेगी बहुत जल्द, क्योंकि वो टोटल नहीं है हाथों में जो होना चाहिए था, 71-75 का. फिर से एक बैठक शॉट मारना चाहते थे, गेंद जाकर एक अच्छी गेंद, इस बार यॉर्कर लेन के, पुलर लेन की गेंद, पैरों में, ब्लॉक होल में गेंद, और इस बार सफल नहीं रहे. राम उर्फ लल्ला यादव टेनिस क्रिकेट में सेंचुरी लगा चुके हैं, कई एक से बढ़कर रिकॉर्ड बना चुके हैं लल्ला यादव. कई सालों से शुरू में जो कि डैजलैंड क्रिकेट टीम की ओर से प्रतिनिधित्व संजू नागवर क्रिकेट टीम में जो कि शुरू में खेला करते थे, अब मात्र अपने टीम के लिए. फुल टॉस गेंद सामने, बॉलर के पास से बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव का, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई, सीमा रेखा को चीरती हुई. 4 रन के लिए. एक बेहतरीन शुरुआत लल्ला यादव की, 2 चौके, एक कवर पॉइंट पर, एक सामने बॉलर के पास से 2 चौके पावर प्ले में.
रुद्रेश रिवर्स की कोशिश, अल्टी पल्टी। शेखर पिल्ले हमेशा कहते हैं इस शॉट के बारे में, अल्टी पल्टी। और सनम को कौन बोलेगा इस शॉट के साथ, जब जब ये शॉट दिखाई देता है तो सनम की याद ताज़ा करती है मन में। पहला ओवर, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 11 रन, 2 चौके 10 पर कूद के व्यक्तिगत। राम उर्फ लल्ला यादव तौसीफ बल्लेबाजी कर रहे हैं 1 पर, और देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है मैदान पर। 11 रन बिना किसी नुकसान पर 53 रनों के जवाब में मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए परिवर्तन। सलील सावंत गेंदबाजी के मोर्चे पर, विकेट लेनी पड़ेगी मैच में, नहीं तो ये मैच थोड़ा सा ढीला हो जाएगा हाथों से। देखना होगा, एक अच्छे गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं वो अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला, टीम का दूसरा, और सामने लंबे कद के तौसीफ उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। पावर प्ले के समाप्ति के बाद फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। खराब क्रिकेट, बिल्कुल खराब क्रिकेट, गलत शॉट और अपना विकेट डे बैठे। विकेट चले गए विकेट कीपर के हाथों में। पहला विकेट का पतन होता हुआ इसी के साथ तौसीफ आउट होकर वापस सिर्फ 1 रन बनाकर टीम का स्कोर 11 रन। वन डाउन बैट्समैन नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर, लेकिन तब तक चलेंगे सुमधुर संगीत के साथ हमारे केनिक डीजे के साथ। प्रणय, प्रणय का प्रणव, नए बल्लेबाज वन डाउन बैट्समैन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रणय पोलजी मैदान पर। अंपायर से गार्ड लेते हुए सदगिरी नाइक, उन्हीं के साथ असलम शेख और संजय नाइक त्रिमूर्ति इस टूर्नामेंट के साथ आज के चौथे दिन में कड़ी धूप, सूरज माथे पर दोपहर के सत्र में यह मैदान पर मुकाबला, दूसरा आज के दिन का मैच। और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में परिवर्तन। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में काउ कॉर्नर में एक फील्डर दिखाई देता हुआ। ऑफ साइड पर हमारे बिल्कुल मान्यवर कक्ष के सामने आज सूरज परब ने काफी निराश किया, वो सूरज परब लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए। अच्छी गेंद इस बार, सम्मानजनक खेला, बढ़िया क्रिकेट, एक सेंसिबल क्रिकेट, सम्मान बख्शा। गेंद के पीछे आए जो कि बैकफुट पर, और हल्के से ढीले हाथों से गेंद को पुश किया। जैसे देखा कवर पर काफी दूर है फील्डर। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू किया प्रणय पोलजी ने। सामने लल्ला यादव 2 चौके अब तक लगाते हुए और टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हुए 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकास देसाई, संजय नाइक, सूरज परब एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी थे टीम में, लेकिन बल्ला नहीं चला। कट किया इस बार ऑफ स्टंप पर, अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल के साथ और 1 रन भी जुड़ जाएगा टीम के स्कोर के खाते में, और उसी के साथ फ्री हिट का भी इशारा होगा अंपायर का। स्कोर आगे निकला 14 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। दाएं बाएं की जोड़ी, थोड़ी सी परेशानी होगी मैदान पर फील्डिंग के लिए बार बार काकोड़ा बॉयज कुरचुरम क्रिकेट टीम को। और फ्री हिट की गेंद सामने सनील सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर पहली गेंद पर सफल था, लेकिन थोड़ा सा जो कि अपने लाइन पर ओवरस्टेप हो गए, और उसी के साथ ये फ्री हिट की गेंद। इस बार खेला थोड़ा सा हवा में शॉट, फाइन लेग पर फील्डर, कैच तो जरूर मिलेगा लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। सिंगल बना फ्री हिट की गेंद पर, अच्छी बात सनील के लिए मैं तो कहूंगा, क्योंकि बड़ा शॉट नहीं लगा इस फ्री हिट की गेंद पर। थोड़े से अब्रेक गेंद थी, स्लो ओवर वन थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को थोड़ा बल्ले के ऊपर लगी गेंद, शॉर्ट फाइन लेग पर लगभग कैच को पकड़ा, 1 रन जुड़ गया, और 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकला 15 रन पर 1 विकेट पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक लंबा रनक 20-22 कदमों का सनील सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर कट किया, बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में कवर पॉइंट पर, लेकिन फील्डर से काफी आगे, और गेंद चली गई फील्डर को बीट करती हुई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
सनील सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से अच्छी गेंद सम्मानजनक एक बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल शॉट है इस बार लेदर क्रिकेट का कवर पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर एक रन फिर से जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में बढ़िया क्रिकेट दोनों बल्लेबाज कोई जल्दबाजी कर नहीं मालूम है कि 53 का टारगेट है सामने वाली टीम अगर और एक दो विकेट लेने में सफल रही तो ये मैच में आने वाली बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ जाएगा और सामने से पूरी कोशिश कर रहे काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम और एक आध दूसरा विकेट बहुत जल्द लेना पड़ेगा इस मैच में कम बैक करने के लिए अच्छा शॉट गेंद हवा में लॉन्ग अप बाउंड्री पर काफी दूर फील्डर और एक बार फिर से गेंद बीट करते हुए शायद वहां पर थोड़ा सा गिर पड़े चलिए अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर पानी की बोतल लेकर जल्द से जल्द चलिए प्लीज फील्डिंग के साथ थोड़ा सा गिर पड़े सूरज पर अब कोई ना कोई परेशानी है चलिए प्लीज जो कि पानी का बोतल लेकर 12th मैन चलिए प्लीज मैदान पर और गेंद 4 रन के साथ बाउंड्री लाइन को पार करते हुए चौके के साथ स्कोर आगे निकला 24 टोटल स्कोर एक विकेट पर डीजे थैंक यू डीजे तो सूरज पर अब वापस निश्चित रूप से परेशानी है जरूर जिस तरह से जो कि गेंद को रोकने की कोशिश थी बाद में गिर पड़े मैदान पर कुछ ना कुछ शायद परेशानी हो चुकी है पैरों में फिलहाल बढ़िया शुरुआत 53 का टारगेट और 53 के सामने मोस्ट वांटेड क्रिकेट टीम जो कि 24 रन एक विकेट पर कौशिक एक रन बनाकर सामने तीसरा चौका राम उर्फ लल्ला यादव के बल्ले से और प्रणय पोजी के बल्ले से 4 रन टोटल 6 खुद का व्यक्तिगत और बॉलिंग में परिवर्तन दीप गेंदबाजी करने के मोर्चे पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 12 रन प्रति ओवर बनाते हुए 24 टोटल 24 एक विकेट पर थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन हो रहा है गेंदबाजी में भी बदलाव हो चुका है दीप गेंदबाजी करने के लिए ओवर नंबर तीसरा मैच का शुरू होता हुआ आपको दोस्तों कैप्टन 25 मिनट्स 25 मिनट दे चुके आज के पूरे दिन में जो लगातार 3 दिन 7 मैच आज भी चौथा दिन और आज भी 7 मैच टोटल खेले जाएंगे कल 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल का मुकाबला होगा लेकिन उससे पहले आज टोटल 7 मैच जो इस मैदान पर खेले जाएंगे और सूरज परब की जगह पर साइश मैदान पर उतर रहे हैं फील्डिंग के लिए सब्स्टिट्यूट फील्डर दीप बॉलिंग बार पर अंपायर का इशारा बैटिंग चॉइस पावर प्ले का जो ओवर चलता हुआ तीसरा मैच का 6 ओवर का हर एक मैच 24 रन स्कोर एक विकेट पर 53 रन के जवाब में फिलहाल मैच एक बार फिर से मैदान पर शुरू होता हुआ ढेर सारी इनामें हैं इस टूर्नामेंट में और एक बड़ा इनाम है जो कि सम्माननीय सर हर्ष पालियकर जिनके ओर से बेस्ट डिसिप्लिन टीम 2000 रुपये का इनाम जो कि हर्ष पालियकर जिन्होंने रखा है बहुत अच्छी बात है हर्ष सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
ये भी होना चाहिए क्रिकेट के मैदान पर। स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ज़रूरी होते। कई फैसले अंपायर के लिए भी काफ़ी मुश्किल होते। कई बल्लेबाजों को देखा है कि अंपायर के और बिना देखे जो कि चले जाते हैं वापस जो कि डगआउट में। ये अच्छा क्रिकेट है, ये होना चाहिए क्रिकेट की मैदान पर। अगली गेंद इस बीच में स्विप के इस बार लल्ला यादव लगातार इस शॉट में अब फिर से सफल रहे। गेंद चली गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। अट्ठाईस पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट पर। धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है मैदान पर मोस्ट वांटेड क्रिकेट टीम। और वो सामने 70-75 टारगेट नहीं बनाया। आगे निकले इनसाइड आउट, बहुत बेहतरीन शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए फिर से एक बार बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। के लल्ला यादव के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान पर कर रहे हैं लल्ला यादव, राम उर्फ लल्ला यादव। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, भीतरी किनारा लगा इस बार बल्ले का। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, बैकअप कर रहे थे सिले मैदान पर। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं मैदान पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 32 रन 1 विकेट पर, 32 लॉस ऑफ 1 विकेट। 21 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और इसके बाद 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। एक स्लॉग स्विप का बहुत ही बेहतरीन कमाल का शॉट, नजाकत भरा हवाई फायर, गेंद सीमा रेखा से बाहर स्क्वायर लेग पर 6 रन के लिए। रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 38 रन पर, टोटल 38, 1 विकेट के नुकसान पर। राजू सर जिनका एक बार फिर से आगमन होता हुआ मान्यवर कक्ष में। सर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। विकेट की तलाश में सामने काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम और अपने व्यक्तिगत खुद के 30 रन पर बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का 5 चौके राम उर्फ लल्ला यादव की बल्लेबाजी में। बड़ा शॉट इनसाइड आउट, बहुत ही बेहतरीन कमाल का शॉट, कवर ड्राइव का डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद, एक नजाकत भरा छक्का। अड़तालीस पर पहुंचा टोटल स्कोर, गेंदबाजी में परिवर्तन और एक मैदान पर। और मैच को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ अब 5 रन। क्या विनिंग शॉट खेलेंगे प्रणय पौल जी? देखने वाली बात होगी। क्या राम उर्फ लल्ला यादव? 5 रन चाहिए। बॉलिंग में परिवर्तन, चंद्रेश गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद इस बार विकेट कीपर के पीछे निकले गेंद, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। अंपायर मुड़ते हुए 22 का इशारा और 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकला 49 पर। अब 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। एक शानदार इनिंग राम उर्फ लल्ला यादव, 5-6 चौके 2 छक्के अपने इनिंग में, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 38 रन पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए अल्टी पल्टी स्विप के इस बार स्विच हिट
और जब तक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते सिंगल आराम के साथ चलते चलते बिल्कुल जो कि पूरा किया लल्ला यादव ने। स्कोर आगे निकला, 50 पर पहुंचा, 3 रन चाहिए। मैच बिल्कुल आसानी के साथ जो कि थोड़ा सा एक तरफी मुकाबला रहा ये मैदान पर, जो उम्मीद थी दर्शकों को। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट सामने उड़ाया संजय नाइक, गेंद के नीचे कैच को दबोचते हुए दूसरे विकेट का आगाज होता हुआ डीजे। सत्तर 75 का टोटल हो सकता था तो ये मुकाबला काफी एक और कड़ा हो सकता था मैदान पर, लेकिन वो रन नहीं बने। सामने से गेंदबाजी को दाद देनी पड़ेगी। शुरुआत बढ़िया रही, खास करके यासिन सिंगनगुट्टी ने पहले ओवर में मैं तो कहूँगा थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेल दिया। 2 विकेट चटकाए पहले ओवर में और वहीं से लेकर दबाव बढ़ता गया, संकट बढ़ता गया। बाद में हेमंत चेडगांवकर, उन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी में। फुल टॉस के इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, सफल नहीं रहे। और मान्यवर कक्ष में जो कि स्वागत हो रहा है सर किशन सावंत, जिनका स्वागत हो रहा है गुलाब पुष्पदेवकर। और हम गुजारिश करें फकरू के हाथों जो कि सम्मानित किया जा रहा है सर किशन सावंत जिनको, और उन्हीं के साथ मान्यवर कक्ष में आदरणीय सर यश प्रभु देसाई जिनका स्वागत हो रहा है गुलाब पुष्प देकर, और स्वागत कर रहे हैं हमारे अभी जो कि स्वागत कर रहे सर यश प्रभु देसाई का। आपका दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और सर साहिल पालियकर जिनका स्वागत कर रहे गुलाब पुष्प देकर हमारे गणेश। चलिए सर साहिल पालियकर जिनका स्वागत हो रहा है, और 1 रन सिर्फ चाह रहे हैं। मैच लगभग मैदान पर समाप्त होता। ओवरपेच गेंद लाभ किया, मान्यवर का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए, और इसी के साथ ये मैच मैदान पर समाप्त होता हुआ।